آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت عوام کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ سندھ حکومت کا عورتوں کے لیے ای وی پنک ٹیکسی سروس فراہمی کا فیصلہ۔ کراچی میں 100 ای وی ٹیکسیاں چلائی جائیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں منصوبہ لانے پر اتفاق۔ شرجیل میمن بولے ای وی ٹیکسی سے ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ ای وی ٹیکسی کے آغاز سے بدنما چنگچی رکشہ سروس کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ڈرائیور اور مسافر دونوں صرف خواتین ہوں گی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بھی پنجاب طرز پر وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن سسٹم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، جس میں بڑے پیمانے پر ڈمپرز گاڑیوں کی جانچ پڑتال کی گئی۔ اقدام کا مقصد سڑکوں پر چلنے والی ہیوی ٹریفک کی فٹنس یقینی بنانا تھا۔ سلمان سلیم کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بڑھتے ٹریفک حادثات کے تدارک کے لیے کوششیں تیز۔ فٹنس انسپیکشن کے بعد کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی لازمی قرار۔ شہر میں بڑھتے ٹریفک حادثات کے بعد ڈمپرز پر پابندی لگائی گئی۔ اوقات کار کی خلاف ورزی پر کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی وہیکل انسپیکشن کا آغاز کر دیا۔ اورنگی صنعتی ایریا میں 100 سے زائد ڈمپرز کی انسپیکشن کی گئی۔ متعلقہ ذمہ دار کا کہنا تھا کہ ڈمپرز کو چیکنگ کے بعد فٹنس سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں۔ جن ڈمپرز کی فٹنس قابل قبول نہیں ہوگی انہیں سرٹیفکیٹس نہیں دیے جائیں گے۔ شہر میں موجود بعض ڈمپرز کے بلوچستان کے سرٹیفکیٹس بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ابھی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے بارکیوڈ والی فٹنس اناؤنس کی ہے۔ ہر جو بھی گاڑی کمرشل بزنس کرے گی سندھ میں وہ یہ فٹنس لازمی بنائے گی سندھ گورنمنٹ۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود نے اعلیٰ حکام سے صنعتی ایریا میں ڈمپرز چلانے کی اجازت کی اپیل کر دی۔ لیاقت محسود کا کہنا تھا کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جو ہم ٹرانسپورٹر ہے ٹیکس دینے والا ہے لینے والا نہیں، ہم ملک چلانے والا ہے کھانے والا نہیں۔ خصوص تو یہ آج تو پیٹنس کا ٹیم تو میرے ساتھ بھی کھڑا تھا، تو انشاءاللہ ہمارا جتنا گاڑی بھی ہوگا ڈیمپر جتنا بھی ہوگا اس کا سب پیٹنس بھی بنے گا، خصوص سندھ پیٹنس بھی بنے گا۔ لیکن جو خصوص سندھ گورنمنٹ بل جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آج کے بعد کہ جو انڈسٹری ایریا ہے، جو انڈسٹری ایریا کے اندر ہیوی گاڑی چلے گا اس کو 22 ویلر ٹریلر چلے گا، ٹینکر بھی چلے گا، واٹر ٹینکر بھی چلے گا، گوڈ ٹرانسپورٹ بھی چلے گا، لوڈنگ بھی چلے گا، سب گاڑی بھی چلے گا۔ ہمارے ڈیمپر کے اوپر انڈسٹری ایریا کے اوپر پابندی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے، جس کے بعد ڈمپر سڑکوں پر چلنے کے اہل ہوں گے۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ سلمان سلیم، سٹی 21۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دی، لیکن شہریوں نے اس کمی کو ناکافی قرار دے دیا، جن کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس طوفان میں 2 روپے کی کمی کسی مذاق سے کم نہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں کاوش میمن۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 روپے معمولی کمی پر شہری غیر مطمئن۔ مہنگائی کی آگ میں 2 قطرے پیٹرول کم کر کے کیا بدلا؟ حکومت سے سوال کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی 2 روپے کم کی گئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 256 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ قیمتوں میں کمی کے اعلان کے بعد عوام کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ شہریوں نے اس فیصلے کو ناکافی اور محض علامتی ریلیف قرار دیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی میں 2 روپے کی کمی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی کمی سے کوئی واضح فرق نہیں پڑے گا۔ 2 روپے کی قیمت سستا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کم سے کم اس کو 150 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے۔ 2 روپے سے کیا ہوگا آپ خود بتائیں، اتنی تو تنخواہیں نہیں ہے جتنے کا تو پیٹرول مہنگا ہے۔ حکومت نے اگرچہ قیمتوں میں کمی کی ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی تصور دکھا رہے ہیں۔ عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور محض 2 روپے کی کمی ان کے لیے ناکافی قرار دی جا رہی ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے بڑی خوشخبری، کیا موٹرز کمپنی نے سپورٹیج ماڈلز کی قیمتوں میں تقریباً 10 سے 18.5 لاکھ روپے تک کی بھاری کمی کا اعلان کر دیا۔ اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ گاڑی خریدنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری، کیا موٹرز خریداروں پر مہربان ہو گئی، قیمتوں میں زبردست کمی کر دی۔ کیا موٹرز نے اپنی مشہور ایس یو وی سپورٹیج کی مختلف ویریئنٹس کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی ہے۔ قیمتیں 10 لاکھ سے لے کر 18,51,000 روپے تک کم ہو گئی اور نئی قیمت کا اطلاق 1 مئی سے ہوگا۔ سپورٹیج الفا کی قیمت میں 10 لاکھ روپے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد یہ 94,99,000 روپے سے کم ہو کر 84,99,000 روپے ہو گئی ہے۔ سپورٹیج FWD
मॉडल की कीमत में 18,26,000 रुपए कमी की गई है, जिसकी नई कीमत 1,18,25,000 रुपए से कम होकर 99,99,000 रुपए मुकर्रर की गई है। इसके अलावा स्पोर्टेज HEV यानी हाइब्रिड मॉडल की कीमत में सबसे ज्यादा 18,51,000 रुपए की कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 1,28,50,000 से कम होकर 1,09,99,000 रुपए हो गई है। अशरफ खान, सिटी 21। घर बनाना पहले ही मुश्किल था, अब तो शायद ख्वाब ही रह जाए। सीमेंट की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। फी बोरी 1400 रुपये पर पहुंच गई, जबकि रेगुलेटरी इदारे खामोश तमाशाई हैं। सीमेंट माफिया के खिलाफ एक्शन का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के सताए अवाम के लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब बनकर रह गया। सीमेंट की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया और अब फी बोरी 1400 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफे के पीछे सीमेंट बनाने वाली बड़ी कंपनियों की मिली भगत यानी कार्टेलाइजेशन कार फरमा है। ये कंपनियां मुबैना तौर पर बाहिमी मुशावरत से कीमतें तय करती हैं और रेगुलेटरी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हर चीज़ का एक माफिया है। गवर्नमेंट अपने तौर पर कोई भी रेट नहीं डाल रही है। यहाँ पे जो भी होता है माफिया अपने तौर पर तय करती है। एक कंपनी ने अगर जैसे सीमेंट का भी रेट हालिया बढ़ा है 50 रुपये, तो बाकी कंपनियों ने भी इसी तरीके से वो भेड़ चाल के अंदर 50 रुपये बढ़ा दिए। ये नोटिफिकेशन कंपनी की तरफ से जारी हो गया कि 50 रुपये सीमेंट के हर ब्रांड पर बढ़ा दिए गए। इसकी वजह से मजीद पहले ही काम शुरू हुआ था, पहले ही मतलब ये शोबा एक तरीके से मुतासिर हुआ है महंगाई की वजह से। आवाम का कहना है कि सिर्फ सीमेंट ही नहीं बल्कि दीगर तामीराती सामान की कीमतें भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। नतीजतन आम आदमी के लिए घर बनाना ख्वाब बनता जा रहा है। 50 रुपये बोरी ये बता रहे हैं क्या ना महंगा हो गया। अपना घर बनाने के लिए बंदा परेशान हुए में हर चीज़ पर जो ना रेट पे रेट बढ़ी जा रहा है। रेती पे, सीमेंट पे, ब्लॉक पे और क्या नाम है बॉन्ड पे, हर चीज़ पर जो ना रेट बढ़ रहा है। अवाम और माहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर सीमेंट कार्टेल के खिलाफ एक्शन ले और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम करे, वरना अवाम के लिए छत का ख्वाब ही रह जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। 1 मई के दिन भी बेशतर निजी इदारे खुले हैं जहां लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। वहीं सहाफ़ी बरादरी भी अपनी पेशा वराना सरगर्मियों में मसरूफ़ है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सीनियर सहाफ़ी ताहिर हसन खान कहते हैं हुकूमत मजदूरों की उजरत को बढ़ाए और सहाफ़ती वेज बोर्ड का ऐलान करे। देखते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। यौम मई पर भी मजदूर अपने कामकाज में मसरूफ। मजदूरों के साथ सहाफ़ी भी पेशा वाराना सरगर्मियों में पेश हैं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सीनियर सहाफ़ी ताहिर हुसैन खान ने कहा कि मजदूर तबका और सहाफ़ी माशी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम करें और सहाफ़ती वेज बोर्ड का ऐलान करे। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इदारे खुले हुए हैं और मजदूर काम कर रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक ख़राबी है और इसको हुकूमतों को देखना चाहिए। क्योंकि हमारी जो सियासी जमातें हैं और जो हुकूमतें इक़्तिदार में आती हैं वो वादे करके आती हैं मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़ास तौर पे मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन यह कि वो उस पर अमल दरामद उतरा नहीं हो पाता। कराची प्रेस क्लब में मौजूद सहाफ़ियों ने हुकूमत से मज़दूरों के हकूक़ की बात की और महंगाई की चक्की में पिसने वालों को रिलीफ फराहम करने का भी मुतालबा किया है। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम वो मज़दूर हैं जो किसी भी छुट्टी पर छुट्टी नहीं करते। पहले तो हम योम मई को बड़े जोश और जज्बे से मनाते थे, लेकिन अब योम मई जो है वो गुर्बत, बेरोज़गारी और लॉ एंड आर्डर या मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर अब योम मई हमें उस तरह शान शान अंदाज में मनाने की इजाज़त ही नहीं मिली। हुकूमत को चाहिए कि मज़दूरों के लिए कोई अच्छे इक़दाम करे और सैलरी पैकेज अच्छा दे, मेडिकल कार्ड दे, सहूलत दे। सहाफ़ियों ने हुकूमत पर जोर दिया कि महंगाई के इस दौर में कम आमदनी वाले अफराद की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि कम आमदनी वाला तबका अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। यौम मजदूर पर PCEM की जानिब से एम.ए. जना रोड तक कराची प्रेस क्लब रैली निकाली गई। चेयरमैन राजा मुनीर अहमद कहते हैं मजदूरों के हकूक़ की जद्दोजहद जारी रखेंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। 1 मई मजदूर की अहमियत को उजागर करने का दिन। मुल्क भर के मजदूर इस रोज भी सरापाए एहतिजाज। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, माइनिंग्स एंड जर्नल वर्कर्स यूनियन की मजदूर रैली।
चेयरमैन राजा मुनीर अहमद बोले, कम उजरत ज्यादा मुशक्कत आज के मजदूर के अहम तरीन मसाइल हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में मिनिमम वेजेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अनाउंस की है उसमें भी मेरे ख्याल में 30% इदारे जो बड़े इदारे हैं वो दे रहे हैं, उसके बाद ये छोटे कारखानेदार कोई भी उसको नहीं दे रहा, मजदूर बेचारा मजबूर है। और जहाँ पर 37,000 मिनिमम वेजेस दे भी रहे हैं वहाँ 8 घंटे के बजाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया 8 घंटे के 37,000 रुपये हैं, वहाँ 12 घंटे काम किया जा रहा है। PCEM के सदर मोहम्मद सलीम के मुताबिक मजदूरों के हक की जद्दोजहद जारी रहेगी। नायब सदर मुसर्रत तैमूर बोले, मजदूरों में खवातीन का हिस्सा 30% है, जिनका सबसे अहम मसला हिरासमेंट है। 1 मई जो मजदूरों का आलमी दिन जो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। आज भी एक मजदूर को कम से कम उजरत उसकी नहीं अदा की जाती, आज भी मजदूर को भर्ती लेटर नहीं दिया जाता, आज भी मजदूर को सोशल सिक्योरिटी और EOBI में और लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। तो आज भी पाकिस्तान का मजदूर जो है वो जद्दोजहद कर रहा है। 30% जो है खवातीन जो है इसमें कोटा है इनका, उससे मजदूर मर्दों से ज़्यादा उनके जो है मसाइल पे है। और वो जो है आज भी मसाइल उसी तरह से उनके साथ में हरासमेंट का जो है बेइंतहा उनके साथ हरासमेंट की जाती है। रैली में शामिल मजदूरों ने अपने हकूक के हसूल के लिए मुतालबात पर मबनी प्ले कार्ड्स और बैनर्स थामे रखे थे, जो नारे लगाते हुए हुक्मरानों की तवज्जो के मुंतजिर दिखाई दिए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मजदूरों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इनके लिए आवाज़ उठाना है। ताजिर भी मजदूरों के हकूक ना मिलने पर नाला। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोगों ने आराम किया और छुट्टी पूरी की। 1 मई को भी मजदूरों ने मजदूरी की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन। दीगर शोबों से वाबस्ता मजदूरों के साथ ईंटों के भट्टों और कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूर आज भी हकूक से महरूम हैं। यौम मजदूर पर मेहनत कश कहते हैं। अब एक ही धुन है कि काम करते रहना है, छुट्टी करेंगे तो गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। समझ लो जहर का घूंट बोल के 2 लफ्ज बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रोटी रोजी का बड़ा मसला है। अगर एक दिन भी बंदा जो है ना वो बैठ जाता है तो उनके घर में फाका कशी हो जाती है। तो उनकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है। ये 2 रुपए लेके जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए राशन पानी लेके जाएंगे। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने शिकवा किया कि बदकिस्मती से मजदूर आज भी सबसे ज्यादा पसमानदा तबका है। जब तक मजदूर को बुनियादी हक फराहम ना किए जाएं, सिर्फ दिन मनाने से कुछ नहीं होगा। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ मजदूर से ज़्यादा पसमानदा कोई तबका नहीं है। आज भी मजदूर हमारे यहाँ सबसे एक कमतर हैसियत का एक दिहाड़ीदार फ़र्द के तौर पे समझा जाता है। हुकूमत के पास कोई स्कीम ऐसी नहीं है कि मजदूर को घर दे दें, मजदूर को सहूलतें दे दें, उनके इलाज मुआवजे के लिए कोई पैकेजेस दे दें। होम बेस्ड वुमेन वर्कर फेडरेशन की जहरा खान का कहना था कि भट्टों पर 5 साल से कम उम्र की आखिरी हद तक मजदूर काम करते हैं। इसी तरीके से ये जो बॉन्डेड लेबर है और उसमें सबसे वर्स्ट कंडीशन जो है वो ये जो भट्टा मजदूर है उनकी है कि 5 साल से बच्चा शुरू होता है और उम्र के आखिरी हद तक जो है जो 60-65 जो भी साल है बुजुर्ग वो काम कर रहे होते हैं। और कोई एक भट्टा भी जो है वो यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट के साथ या फैक्ट्री एक्ट के साथ या कोई भी जो इदारा है जो रजिस्टर करता है वो गैर रस्मी तौर पे काम कर रहे हैं। आज भी मेहनत कशों के हक के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी फलाह बहबूद कौमी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बताएं कि ग़िज़ाई किल्लत से निमटने के लिए सिंध हुकूमत ने अहम इक़दाम उठा लिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इश्तराक से नए नशोनमा प्रोग्राम पर इत्तफाक कर लिया। देही स्कूलों में सफाई और सेहत से मुतल्लिक खुसूसी मुहिम भी शुरू की जाएगी। आज इस जमाली की रिपोर्ट में देखिए। ग़िज़ाई किल्लत का खात्मा सिंध हुकूमत का नया अज़म। हामला ख़वातीन और बच्चों के लिए खुराक, इलाज और इमदाद देने का भी फैसला कर लिया गया। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर कोको यश्यामा ने मुलाकात की, जिसमें ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे और स्कूलों में सहूलियात की बेहतरी पर तबद्दा ख्याल किया गया। मुलाकात में नया नशोनुमा प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफाक हुआ, जिसके तहत 2 साल से कम उम्र बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत और छोटे कद जैसे मसाइल से बचाने के लिए खुराक, तिब्बी सहूलियात और माली इमदाद दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत हमला ख़वातीन को हर 6 माही में 3000
15,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी, जबकि लड़कियों के लिए इमदादी रकम ज्यादा रखी जाएगी। देही इलाकों के स्कूलों में वाटर सैनिटेशन और हाइजीन प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला किया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन, तिब्बी मुआयना और आगाही सेशन लाजमी होंगे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत इस प्रोग्राम में अपने फंड्स भी शामिल करेगी ताकि स्कूलों की सतह पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। जबकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर का कहना था कि मुआहदे का मकसद सिंध में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम की बेहतरी है और 2027 तक कमजोर तबकात को सहूलियात फराहम की जाएंगी। आजिज़ जमाली, सिटी 21। मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि शहर में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा। महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों की इंतजामिया को हीट स्ट्रोक वार्ड कायम करने और ठंडे पानी के कूलर लगाने की हिदायत जारी कर दी गई। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। महकमा मौसमियात का हीट वेव अलर्ट जारी। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों में हिकमत अमली तैयार। हीट स्ट्रोक वार्ड्स और ठंडे पानी के कूलर्स लगा दिए गए। दीगर अस्पतालों की तरह सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में भी इंतजाम कर लिए गए। हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिया गया, जहां तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं, जबकि ठंडे पानी के कूलर्स भी नस्ब कर दिए गए हैं, जिससे मरीज, तीमारदार समेत दीगर अफराद भी फायदा उठा रहे हैं। पानी कब से मैं पी रही हूँ, सुबह से आई हूँ, 8 बजे से आई हूँ। पानी फ्री का है, कोई नहीं पैसों से कोई नहीं खरीद रहा। भाई शुक्र है अल्लाह पाक का कि यहाँ ठंडे पानी का इंतज़ाम है और आरओ प्लांट का पानी दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत सारा अजर दे। बच्चे भी पी रहे हैं, छोटे भी पी रहे हैं, बड़े भी पी रहे हैं और सवाब का काम भी है, तो अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ऐसे काम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। शहर में जारी गर्मी के बाइस मुख्तलिफ बीमारियां भी फूट पड़ी। बड़ी तादाद में बच्चे, बड़े और खवातीन मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने भी आवाम को हिदायत की है कि इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा साफ पानी और घरेलू खुराक का इस्तेमाल करें। कैमरामैन सैयद शाहजेब के हमरा इब्राहिम रिन, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि नेल्सन पेंट्स की जानिब से बासलाहियत और मेहनती मुलाजमीन के लिए 7वीं एम्प्लॉयज़ डे की रंगारंग तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें कंपनी की तरक्की में नाकाबिले फरामोश कारकर्दगी दिखाने पर वर्कर्स को एजाज़ी शील्ड, सर्टिफिकेट और कीमती इनामात से नवाजा गया। अक्सा शेख की रिपोर्ट में देखिए। वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए बड़ी तकरीब का एहतमाम। कराची के मकामी बैंक्वेट में नेल्सन पेंट्स ने अपने बासलाहियत और मेहनती मुलाजमीन के एजाज में 7वीं एम्प्लॉयज डे की रंगारंग तकरीब मुनक्किद की। इस मौके पर नेल्सन MD सराजुद्दीन, COO मोहम्मद तौसीफ और दीगर मैनेजमेंट ने बेहतरीन वर्कर्स को एजाजी शील्ड, सर्टिफिकेट और कीमती इनामात दिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सराजुद्दीन का कहना था कि हम किसी सूरत भी अपने वर्कर्स की मेहनत को नहीं भुलाते। हमारी जो टीम है वो हमारी फैमिली का हिस्सा है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपनी पूरी फैमिली को जिस तरह अपनी फैमिली को हम सर्व करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शार है कि हम इसको भी अपनी फैमिली समझते हैं और उसको उसी तरह इज़्ज़त देते हैं, उसी तरह उनका वक़ार देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ, हमारी फैमिली भी इसी तरह हमारे साथ मेहनत करती है और बहुत मोहब्बत से काम करती है। अल्लाह पाक इनको सबको बरकत है और आफियत अता फरमाए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद तौसीफ ने कहा कि वर्कर्स की खुशियों में हमारी खुशियाँ शामिल हैं। इस इवेंट में हम अपनी लेबर को, अपनी तमाम साथ काम करने वालों को, अपने साथियों को खराज तहसीन पेश करते हैं और वी वैल्यू देम, और इसकी रिकग्निशन के लिए, इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए आज ये पूरी महफिल सजाई गई है। और जनाब यहाँ पर जो है ना एप्रिसिएशंस का और रिकग्निशन का और मुस्कुराहटों का सफ़र जारी है। इसके अंदर तोहफ़े तारीफ़ है हमारी अपनी टीम के लिए और ये खुशियों बांटने का सफ़र हमारे साथ ये चल रहा है, जारी सारी है। तकरीब में लकी ड्रॉ के जरिए उम्रे के टिकट्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर कंपनी इंतजामिया समेत वर्कर्स, डीलर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन ताबिश के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।